दिन में घंटे, महीने में दिन और साल में महीने उतने ही थे। फिर भी कुछ ज्यादा ही लंबा था ये साल। यूं तो इंतजार आने वाले का होता है, पर इस बार जाने का इंतजार करवा गया ये साल। नकाबों से ढके चेहरों को, नजदीकियों पे लगे पहरों को। उम्मीद है कि वक्त बदलेगा ये साल, जब अपना पन्ना पलटेगा। नए साल के नए पन्नों पर इस बार शायद कुछ जाने पहचाने शब्द मिलेंगे। वो मेल जोल, वो हंसना खिलखिलाना, साथ मिलके बैठना, वो गाने गाना। इंतजार ये है कि वो महफिल कब सजेंगी, वो आंगन के द्वार कब खुलेंगे। In the new normal, work as we know it has been reinvented, and so has been the workplace. The line between office and home is a blurred one, with technology playing the pivotal role in our lives. The sheer speed of change is overwhelming. Today, as you step into the big world of business, what is it that you're looking for? What's the workplace like in the future of work? Come, let me take you through it. A place where geography is no longer a constraint to deliver the best business solutions. A caring and sharing environment where you are made to feel as a family member from day one. A devoted family, where even a small achievement is acknowledged with a big dil se. Where innovation simply means anything is possible and nothing is impossible. Where every good can be made great to make work more rewarding. An institution where every woman is empowered to work with freedom and get equal opportunities to rise to the top echelons of leadership. Perfect platform where entrepreneurial spirit and creativity will get you opportunities to break new ground. Where being digital ready is the leitmotif of today's business successes. Where responsibilities include working with honesty, humility, and being respectful to all. Where your role includes providing smart solutions to any challenge that comes your way. An organization where you are made to feel as you're part of one big team, irrespective of your gender, faith, nationality, or sexual orientation. A workplace where you can try, fall, fail, hurt, and rise again with a smile on your face. And where you can be the game changer if you have it in you to change the game for the better. A family of members where compassion is a wealth of well-being, which enables us to face challenging times with empathy and resilience. Finally, a workplace where normal is boring and being different is what sets us apart. A workplace of future is here with opportunities unlimited. Welcome to a caring family. Welcome to Trident. Let's talk. Sweating is awesome. It's about not giving up. Sweating is pushing your limits. Sweating is overcoming the pain and going further, inching closer to winning. Sweating is one more lap, one more mile, one more lift, one more pull, one more push. Sweating makes you shine. Trident Play. Soft, light and easy to carry sport towels. Sanitized, 100% organic cotton, super absorbent. Trident Play. Keep sweating, keep shining. अच्छा, अपने परिवार को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया बताइए। उनके दिल की फिक्र हुई तो कुकिंग ऑयल चेंज किया ना। दांतों को मजबूत रखने के लिए टूथपेस्ट बदल दिया। बाल गिरने लगे तो शैम्पू, चेहरे पे निखार के लिए फेस वॉश। लेकिन जो नहीं बदला वो है आपका टॉवल। आपके गीले, नम और बंद बाथरूम में रखा टॉवल बैक्टीरिया का घर है, इतना जान लीजिए बस। क्या कर सकते हैं, सब टॉवल्स एक जैसे ही तो होते हैं। ट्राइडेंट की ट्राइसेफ एंटी बैक्टीरियल टॉवल्स सब टॉवल्स की तरह नहीं है।
इनकी सैनिटाइज टेक्नोलॉजी रखे टॉवल को बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया से बिल्कुल आज़ाद। इनके धोने में पानी लगे बिल्कुल कम और इनकी क्विक ड्राई तकनीक टॉवल को जल्दी सुखाए। तो 6 टॉवल्स का फैमिली सेट सिर्फ 999 रुपये। ट्राइडेंट ट्राइसेफ टॉवल्स, स्वच्छता पे हक तो सबका है। नमस्कार साथियों, पहले तो आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, ट्राइडेंट परिवार के लिए, भारतवर्ष के लिए और दुनिया के लिए बहुत खुशहाली भरा हो, सुखदायक हो, सेहतमंद रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं आज आपसे विजन डे से एक दिन पहले इसलिए बात करना चाहता हूँ ताकि ये जो संदेश है आप सब तक पहुँचे, आप इसको समझें, देखें, परखें, बातचीत करें और जब 2 तारीख को हम इसका टाउन हॉल करें जिसपे 3000 लोग या 4000 लोग शामिल होंगे, तो उसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकें और लोग, दोस्त, कर्मयोगी, गुरुज, ब्रह्मसेवक अपने सवाल कर सकें और अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपनी टीम से, अपने परिवारजनों से समझ सकें कि इसको और अच्छा बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसलिए मैं अपने जो ट्राइडेंट की विजन, जिसे हम विजन कहेंगे, विजन 2025 तक के विजन की बात आपसे करने आया हूँ। पहले तो मैं सब भाइयों का, स्पेशली कर्मयोगीज का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो पूरा ये साल रहा, आपने कोविड की महामारी में आपने तन मन के साथ जिस तरीके से ट्राइडेंट के अंदर अपने ग्राहक को, अपने साथी को निराश नहीं होने दिया, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। बुदनी की टीम ने जिस तरीके से फ्लड में स्थिति में भी काम किया, वो बहुत बड़ी मिसाल है। अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो आप गौरव होते हो, आपको एक प्राउड सेंस ऑफ प्राइड होता है। पंजाब की टीम ने भी बहुत काम किया, लोगों के लिए भी, ट्राइडेंट परिवार के लिए भी और साथ के गांव के लिए भी, जो उन्होंने CRS में काम कोविड में किया, चाहे PP किट्स का, चाहे मास्क का, चाहे और बहुत काम किए हॉस्पिटल्स में दवाई का, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 साल में, या पिछला जो साल गुजरा है, हालात की वजह से समझिए, कोविड की वजह से समझिए, जो एक एम्पैथी, सहानुभूति और एक दूसरे का दुख दर्द समझने की क्षमता ट्राइडेंट ने दिखाई है, वो एक मिसाल रही। टीम वर्क, आपस में काम करने का जो एक जज्बा था, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। और एम्पावरमेंट, क्योंकि कोविड था, मूवमेंट बहुत कम थी, आना जाना बहुत कम था, वर्क फ्रॉम होम था, मुश्किल थी, तो हर जो भी मेंबर, जो भी सदस्य जहाँ भी काम कर रहा था, उसने पूरी एम्पावरमेंट के साथ काम किया है और उसमें एक नई सफलता लेके आए हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी ही तरफ से नहीं, मधु की तरफ से भी, अभिषेक की तरफ से भी, गायत्री की तरफ से भी, नेहा की तरफ से भी,
विहान की तरफ से भी और तारनी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस हालात में आपने इतना बढ़िया काम किया और मुझे भी आपने अपने परिवार के साथ रहने का मौका दिया। मैं उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आज देश का बहुत बड़ा नारा है आत्मनिर्भर भारत। हम भी उसी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, ब्रांड इंडिया और ब्रांड ट्राइडेंट हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं, वो भी हमारी एक विजन, हमारी एक दूरदर्शिता है। डिजिटल ट्राइडेंट 4.0 की जो इंडस्ट्री की तरफ पिछले 2 सालों में आईटी ने काम किया, कोई कम से कम 200 करोड़ से ऊपर लगाया। ये डिजिटल भारत की जो हमारी और डिजिटल ट्राइडेंट की जो हमारी एक मुहिम है, इस साल में अपने आप में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगी कि हमारे ग्राहक से लेके सप्लायर से लेके हर मेंबर के टिप पे ऐप के ज़रिए वो अपना जो भी काम है कर पाएगा। उसको जो कहते हैं मिनिमम गवर्नेंस, और उसके पास हर इंफॉर्मेशन उसके पास जो उसको चाहिए उसके सेल फोन पे, उसकी ऐप पे, उसके कंप्यूटर पे रहेगी और वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ रहेगा। यानी कि जो जानना चाहता है वो सच्चाई की तरफ सबसे बड़ा एक कदम होगा। जिस तरीके से आपने घर घर रोजगार पे 2500 महिलाओं को, वो भी जो बीपीएल में आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनका बीड़ा उठाया है। दीनदयाल उपाध्याय जो सरकार की है उस पर आप काम सहयोग दे रहे हैं, और जो अपना तक्षशिला है जिसमें आप अर्न लर्न ग्रो की बात को आके लेके जा रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने काम किया, नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नई दिशा की तरफ गए हैं, वो एक बहुत बड़ा आत्मसम्मान भी है, आत्म अनुभव भी है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रेरणा है जिससे लोग भी सीखते हैं और हम औरों के लिए एक प्रेरणा सूत्र है। मैं आपके सामने 2025 वर्ष के लिए जो हमारे विजन लक्ष्य है वो रखना चाहता हूँ। रखना ही नहीं चाहता, आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने मिलके उसको हर हालत में पूरा करना है। हम उसके लिए किस तरीके से वचनबद्ध होंगे उसकी मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। जैसे आपने कल एक मेरी तरफ से एक मेल देखी होगी, एक वॉइस नोट भी देखा होगा। हमारा मानना है कि हम 2025 तक, यानी कि अगले 5 सालों में अपनी कंपनी को 25,000 करोड़ की टर्नओवर पे ले जाएंगे, हर हालत में ले जाएंगे, और कम से कम 3,000 करोड़ के मुनाफे की बात करेंगे। और ट्राइडेंट का जो ब्रांड रहेगा वो एक हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद ब्रांड रहेगा। और डिजिटल ट्राइडेंट की जो हमारी एक 4.0 की है वो अपने आप में मिसाल रहेगी कि पूरा का पूरा, चाहे वो ट्रेसेबिलिटी है, चाहे वो एक मेंबर है, चाहे वो एक ग्राहक है, चाहे सप्लायर है, जिसका भी ट्राइडेंट के साथ कोई किसी का संबंध है, वो डिजिटल, उसका एक डिजिटल लिंक रह जाएगा। वो हमारा अपने आप में एक वचन है, हम उसको पूरा करने की बात करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि हमारी ये पहले हमने अपना 2020 के लिए अपने लिए एक कुछ टारगेट सेट किए थे, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। वो हमारे लिए एक सीख रही, हमने उससे सीख ली है। इसलिए अब पूरे समय में, जैसे आप जानते हैं कि ट्राइडेंट ने 2 जनवरी से पहले भी, उससे पहले भी
कोई 30 से 40% हरे की जो है आया वृद्धि की बात की है। और अगर OKRs डाल लें या ताकि एक अर्नेबिलिटी सैलरी को डाल रहे हैं तो हर सदस्य दुगनी इनकम, जो मतलब कि उसकी 2020 में इनकम रही, 2021 में उससे 2 गुना कमा सकता है। उसी के साथ साथ हमने कुछ अपने लिए जिम्मेवारियां भी बांटी हैं। ये जिम्मेवारियां हमने उस अनुभव से सीखी हैं जो अनुभव हमने पिछले 2 सालों में किया, और अनुभव ने हमें ये सिखाया। कुछ चीज़ों में हम बहुत कामयाब रहे, कुछ चीज़ों में हम कामयाब नहीं रहे। अगर मैं कहूँ कि TOC में हमने कोई 200 करोड़ लगाया होगा, वो शायद उस पर हम इतने कामयाब नहीं रहे। TPM में हमने बहुत पैसे लगाए होंगे, हम उस पर कामयाब नहीं रहे। JIT, कैश टू कैश साइकिल, क्वालिटी सर्कल्स, क्लियर, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम कभी इसमें कामयाब रहे, कभी कामयाब नहीं रहे। ये हमें इसके बारे में सोचना होगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस कार्यशैली को, काम करने के तरीके को इस तरीके से बांटने की कोशिश की है। बांटने की कोशिश नहीं की, हम उसके लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं वचनबद्ध हैं कि हमारा परिवार एक ऐसा परिवार होगा जो दिल से, दिमाग से, अपनेपन से काम करेगा, चाहे उसमें थकावट हो, खुशी से काम करेगा। सबसे बड़ी समस्या कर्मयोगी 1 को, जो सबसे हमारे कर्मयोगी भाई जो नीचे काम करते हैं, उनको ये होती थी उनका रोस्टर। ये हम कहना चाहते हैं कि जो भी कर्मयोगी 1 अपने रोस्टर को नहीं निभाएगा, रोस्टर को तोड़ेगा, वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं रहेगा। और इस तरीके से कर्मयोगी 2, जो कर्मयोगी 2 पे आते हैं, उनके लिए क्वालिटी सर्कल को चलाना बहुत ज़रूरी है। वो क्वालिटी सर्कल को लीड करेंगे और क्वालिटी सर्कल के ज़रिए उसमें लोगों में एक टीम वर्क लेके आएंगे, लोगों को सिखाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे। अगर वो क्वालिटी सर्कल को लीड नहीं करते तो शायद वो, अगर उसका कारण भी नहीं है, लीड भी नहीं करते, उसको चलाते भी नहीं है, तो वो ट्रायडेंट के परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे। इसी तरीके से जो हमारे कर्मयोगी तीसरे जो सबसे ऊपर आते हैं, क्लियर करना, चाहे वो क्लियर मशीन का हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे स्टोर का हो, चाहे सर्च फ्री काउंट फ्री का हो, वो उनको क्लियर करना उनके लिए ये उनके काम का, जिम्मेवारी का हिस्सा होगा। जो इस जिम्मेवारी को नहीं निभा पाएंगे या उसको निभाने की चेष्टा नहीं करेंगे या उसको निभाने के लिए सीखने की चेष्टा नहीं करेंगे, वो ट्रायडेंट परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे। वो ट्रायडेंट परिवार के वही सदस्य रहेंगे जो इस जिम्मेवारी को निभाना चाहेंगे। जब बात एक गुरु की आती है, चाहे गुरु 1 लेवल पे हो या 2 लेवल पे हो या 3 लेवल पे हो, गुरु वो जो ज्ञान दे सकता हो। ज्ञान वही देगा जो करके दिखा सकता हो और करके बता सकता हो और उसका अपने आप में एक उदाहरण हो। मान लो अगर वो मशीन चलाने की उदाहरण हो उसकी, काम करने की उदाहरण हो उसकी, सैप चलाने की उदाहरण हो उसकी, उसके बाकी सब काम करने की उदाहरण हो, अपने हाथ से इतना निपुण हो, इतना वो उसके काम में इतनी कार्यशैली हो कि वो किसी को जब सिखाए, किसी को समझाए तो उसको उसका पूरा ज्ञान होगा। उसमें हमने बांटा है कि जो गुरु MMM यानी कि मॉडल मशीन मैनेजर नहीं होगा या मॉडल एक मैनेजर नहीं होगा, चाहे वो अपने मशीन के साथ है, चाहे अपने अकाउंट्स के साथ है, चाहे अपने सप्लायर के साथ है, चाहे बिजनेस पार्टनर के साथ है, चाहे वो एम्प्लॉय के साथ है, चाहे किसी भी महकमे में है, अगर वो अपने हाथ से वो काम नहीं करता, वो अपने आप में सूक्ष्म नहीं है, ऐसी जो TPM है, जहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस, दुनिया में अच्छा काम क्या हो रहा है उसको क्रॉस लर्निंग के रूप में नहीं प्रस्तुत करता, वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी रहेगी। उसको अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी,
अगर उसको ट्रायडेंट में सदस्य रह के अपनी आय को दुगनी करना है। जो गुरु 2 हैं उनके लिए TOC, JIT, FIFO, उनके लिए ये समझिए कि ये उनके लिए ये करना ही होगा, इसको वो किसी तरीके से छोड़ नहीं सकते। इसको वो इसकी उदाहरण होंगे, वो इसके ज्ञान का सागर होंगे, ज्ञान का स्रोत होंगे। और गुरु 3 जो भी हमारे एसेट्स हैं, चाहे वो एसेट मटेरियल के तौर पे हैं, चाहे वो मैन के तौर पे हैं, चाहे वो मेथड के तौर पे हैं, चाहे वो मशीन के तौर पे हैं, चाहे कस्टमर के तौर पे हैं, चाहे सप्लायर के तौर पे हैं, जो भी हमारी पूंजी है उसका रख रखाव और उसको सही तरीके से रखना उनकी जिम्मेवारी रहेगी। वो उनका सबसे बड़ा धर्म और कर्म रहेगा। ब्रह्म सेवक जो हमारे ब्रह्म सेवक 1 पे हैं, उनका कैश टू कैश साइकिल को मेंटेन करना, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पे काम करना, वॉर अगेंस्ट वेस्ट का काम करना और बिल्कुल ERP को लागू करना, मास्टर डेटा को देखना, उनका ये धर्म रहेगा, उनका ये कर्म रहेगा। इस तरीके से जो हमारे ब्रह्म सेवक 2 हैं जो उससे बड़े हैं, उनका काम इंडस्ट्री 4.0 को किस तरीके से पूरे तरीके से निभाना होगा और वीकली हर हफ्ते अपनी कंपनी की ट्रू बैलेंस शीट, अपने डिपार्टमेंट की ट्रू बैलेंस शीट, अपने बिजनेस की ट्रू बैलेंस शीट का अनुमान लगाना जी उनकी जिम्मेवारी रहेगी। और उनको ये सोचना होगा कि मेरी आज रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रही है, अच्छी रही, बुरी रही। परफॉर्मेंस आना एक बात है, परफॉर्मेंस को माप लेना, उसको समझ लेना, उसको सुलझा लेना, वो हमारा सबसे बड़ा धर्म और दायित्व है। अगर हम प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पढ़े लिखे MBAs हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, तो हम हर चीज़ का उसका जो समाधान है वो एक साइंटिफिक तरीके से ढूंढेंगे। उसको कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो साइंटिफिक तरीके से ठीक ना हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ठीक ना हो और उसमें सब लोगों का विवेक शामिल हो। हर एक का विवेक शामिल करना हमारी जिम्मेवारी है। जो ब्रह्म सेवक 3 हैं, सबसे ऊपर वाले ब्रह्म सेवक हैं, उनको मेरा आग्रह है कि कंपनी को, उनका सिर्फ रोल है कि किस तरीके से कंपनी को आपने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। चाहे ग्रोथ आपने 25,000 करोड़ की करनी हो, चाहे नए प्रोडक्ट की करनी हो, चाहे नई टेरिटरी की करनी हो, चाहे अपनी टीम की ग्रोथ करनी हो, बिजनेस की ग्रोथ करनी हो, और किस तरीके से आपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है और किस तरीके से आपने इसको ऐसी कंपनी जो हर तरीके से कानून के लिहाज से, काम करने के तरीके के लिहाज से एक निपुण हो, संपन्न हो और एक उदाहरण के तौर पे हो। ये मैं कुछ चीज़ें आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारा लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं है। ये लक्ष्य बहुत आसान है और ये लक्ष्य हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी करना है। अगर हम ट्रायडेंट को एक दुनिया की, चाहे वो पेपर्स हैं, चाहे केमिकल हैं, चाहे होम टेक्सटाइल है, चाहे यान है, जो हमारा स्लोगन है बिगेस्ट एंड द बेस्ट, उसके लिए हमारा एक विजन, एक मिशन, एक गोल, जो हमारा एक लक्ष्य है, एक सोच है और एक ही हमारी दृष्टि है, तो हमें ट्रायडेंट को दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बेहतर एक कंपनी ही नहीं, परिवार बनाना होगा जो दुनिया में ऐसा इतिहास रचे कि ट्रायडेंट की जय जयकार हो। जो हमारा एंथम है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हम इसी बात को जिएंगे और हम एक ऐसा परिवार बनाएंगे जिसमें खुशियां ही खुशियां होंगी और जो भी हमारे साथ
दूर से नज़दीक से। एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ई कॉम की। कोविड ने जो ई कॉम, ई कॉमर्स, चाहे आज वो छोटे से छोटा किसान है, मज़दूर है, या बड़े से बड़ा कोई व्यापारी है, वो ई कॉम को बहुत भली भांति जानता है। तो ई कॉम किस तरीके से एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई युवा पीढ़ी को ट्रायड के अंदर जन्म देता है, उसके लिए हमने एक बहुत अच्छी ज़मीन तैयार करनी है। मैं ये चाहूँगा अपने साथियों से जो ब्रह्म सेवक हैं कि ट्रायडेंट की जो युवा शक्ति है, जो यंग टैलेंट है, जो युवा हैं जिनमें आज ताकत है, एनर्जी है, सोच है, विवेक है और एक हौसला है, उनको आप समय दें, उनको आप टाइम दें, उनको आप मौका दें और ट्रायडेंट को दुनिया की सबसे युवा, सबसे मॉडर्न और सबसे डिसाइसिव और सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का खिताब हासिल हो। मैं अपने सब प्यारे बच्चों से, युवा साथियों से, जो आज के इस युग के निर्माता हैं, उनसे विनती करता हूं कि आप आगे आएं, आके बढ़ के ट्रायडेंट की बागडोर संभालें और एक युवा ट्रायडेंट को युवा भारत के अंदर ऐसा जोड़ दें कि सारी दुनिया ट्रायडेंट को सलाम करे और ट्रायडेंट का नाम हो। मैं इस कामना के साथ, इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जहां तक मेरे सहयोग की बात है, मैं तन मन धन के साथ आपके साथ 24 घंटे 365 दिन आपके साथ हूँ। मैं आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। 2 तारीख को हम बैठ के आपके विचार जानेंगे और अच्छा किस तरीके से किया जाएगा। आप खुले मन से, खुले दिल से अपने विचार रखिए, बहुत अच्छा लगेगा। 2 तारीख को आप इसको समझिए, इसको सुनिए, इसको जानिए, अपने विचार दीजिए कि और अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा कैसे कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको, आपके परिवार को, पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को एक ऐसा नया साल आए जो खुशियों से भरपूर हो। जय हिंद।